ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਦਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿਰਗੋ ਔਰ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਨਣ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਪਾਈਏ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲੀ ਫਰਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਪਲੀਜ਼ take the stage on. Welcome. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਹਿਲੂਸ ਮਲਟੀਪਲ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾ ਜਾਏ ਉਹ ਭਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਲਾਸ ਕੁਆਇਟ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ, ਆਈ ਟੇਕ ਲਿਟਲ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 55 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर दैट। 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰ ਰਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਗੁਰ ਰਰਾ ਮੁਕਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਰੇ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਔਰ ਗੁਰ ਰਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿਗੁਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੜ, ਸਿਆਕੰਦ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਿਆ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਭਾਰਨਾ, ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, रूट वर्ड ग्री, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਟੱਚ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਔਨ ਇਟ।
कान सिंह जी नाभा कहते हैं कि इसके अर्थ हैं निगलना, टू स्वालो, और समझाना। जो अज्ञान नू खा जाता है अते सिख नू तत्व ज्ञान समझाता है, वो गुरु है। गुरबाणी विच गुर ररा मुक्ता, गुर ररे नो औंकड़ ते गुरु ररे नो दलैंकड़ शब्द एक ही अर्थ विच आए हैं। यथा गुर अपने बलहारी, एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई साहब जी, सुख सागर गुर पाया ररे नो औंकड़, अपना गुरु ध्याए। सो जेड़े तीन लफज उन्होंने उपर कहे सी, उन्होंने तिना दियां एग्जाम्पलां दे के क्लैरिफिकेशन दी। फिर अगे कहते हैं चौथा मीनिंग है धार्मिक सिक्ख्या देण वाला आचार्य, इन अदर वर्ड टीचर, जिहड़ा धार्मिक शिक्षा दिंदा। फिर कहते मत दा आचार्य, जिहड़ा कोई सैक्ट चलांदा है, उहदे च एग्जाम्पल दिंदे हैं 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश सोहले तो, 6 शास्त्र हैं, उन्होंने 6 रचेता है और उन्होंने अलग अलग 6 उपदेश हैं। फिर कहते हैं पति भरता, शोभावंती सुहागणी जिन गुर का हेत अपार। इत्थे गुर का कक्के नूं कक्का लग गया तो यह बन गई प्रपोजिशन कक्का का, गुर का हेत अपार, ते इस वास्ते गुर दे ररे दा औंकड़ उतर गया। थोड़ा जिहा शब्दकोश विच उन्होंने नन्ने नूं सिहारी लाई है, ते वो मैं लिखी है कि इत्थे सिहारी है नहीं बाणी विच, पर उत्थे उन्होंने लाई है, तो मैं हू बरू जिस तरह उत्थे लिखिया सी उस तरह ही टाइप किया है, पर मैं यदि दसना चाहता सी कि थोड़ा जिहा प्रिंटिंग एरर हो सकता है। फिर वो कहते हैं गुर का अर्थ है बृहस्पति, थर्सडे, गुरुवार। देव गुर कह गुर गज शिव सब को जाने, गौड़ी कबीर जी दी, वो देव गुर का अर्थ निकलता है इत्थे। फिर कहते गुरु का अर्थ अंतःकरण भी है, मन। उथे एग्जाम्पल देंदे कुंभे बद्दा जल रहा, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहा, गुर। इत्थे भाई साहब ने गुर का अर्थ मन लिया, मन। गुर नूं मन दे नाल तुलना दिती है, बिन गुर, गुर बिन ज्ञान ना होए। हुण इहनूं असीं थोड़ा जिहा विचारदे हां कि भाई साहब दे इत्थे मन नाल गुर कंपेयर करन दा की रीजन हो सकता है। हुण ये ते असीं समझदे हां कि बई जे गुरु ने ज्ञान देना है, वो ज्ञान कित्थे वसेगा? बाहर ते नहीं वस सकता ना, शरीर विच ही वसेगा। हुण शरीर विच किहड़ी जगह ते वसेगा? किसी भी चीज नूं ग्रहण करन वाली जिहड़ी एंटिटी है वो ते मन ही है। सो गुरु ने जदों ज्ञान देना, ज्ञान मन ने ग्रहण करना। सो मेरे विचार नाल इत्थे इस करके भाई साहब ने गुरु का अर्थ मन लिया कि गुरु का ज्ञान जदों मिलता है तो वह मन ग्रहण करता है, बगैर मन दे ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता। ते फिर मैं होर भी स्टीक देखे। हुण कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। इहदा मतलब कुंभ का अर्थ है घड़ा, घड़े विच या किसी कंटेनर विच। घड़ा ते वर्ड है ना, बट इट्स ए सिनोनिम। किसी भी कंटेनर च पानी रह जाता है, पर पानी बगैर घड़ा नहीं बनता। ते उत्थे कहते कि भी पानी बगैर घड़ा किस तरह नहीं बनता, क्योंकि घड़े नूं बनाउण वास्ते मिट्टी गुणा पैंदा, उत्थे पानी चाहिए। सो कुम्हार जिहड़ा हैगा उहनूं नमित कारण दिता है। फिर जल, मिट्टी और अग, इन्हां नूं उपादान कारण दिता है। गुरु नमित कारण है और मन उपादान कारण है। उपादान की हुंदा है?
किसी चीज नूं ग्रहण करना, ज्ञान की प्राप्ति, वो कहते वो कारण जिहड़ा कारज विच बदल जाए। हुण मन जदों ग्रहण करेगा ज्ञान नूं ते मन उस दे उत्ते अमल करेगा, वो कारज विच बदल जाएगा। इस वास्ते ये मन उपादान है ते गुरु निमित्त है। फिर कहते भी माया जिहड़ी है ये जगत दी उपादान है। मिट्टी कारण है, घड़ा कारज है, कंप्लीटेड कारज है। सो ये रिलेशनशिप कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ये कंपैरिजन मैनू काफ़ी सोहना लग्या, निमित्त दा और उपादान दा, गुरु दा ते मन दा रिलेशनशिप जिहड़ी दसी उस स्टीक विच मैनू काफ़ी अच्छी लगी। मैं सोचा तुहाडे नाल मैं वो भी शेयर कर ला। फिर भाई साहब कहते एक विशेषण है, इसका अर्थ विशेषण विच पूज्य, जिहदी पूजा जो की जाए, जिहड़ा पूज्य होए, पूजन योग होए। नानक गुर ते गुर होया, वो एग्जाम्पल दी इन्होंने। फिर अनदर मीनिंग कहते वड्डा प्रधान, कौन नाम गुर जाके सिमरे भवसागर को तरई। ऐसा केड़ा नाम है गुरु दा जाके, जाके बाणी विच अलग अलग लिखा, पद छेद बीड़ विच भवसागर भी अलग अलग पद छेद करके लिखा, पर भाई साहब ने इकट्ठे लिखे हैं तो इस वास्ते मैं इकट्ठे टाइप किए हैं। फिर कहते देखो गुर, हुण असी चल के अगे देखते हैं गुर वास्ते की कहते हैं। हुण जे असी गुर देखिए तो हाले तो मैं महान कोश ते ही हाँ, ओके, वी आर गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, ताकि साडे अंदर वस जाए, सानू डाइजेस्ट हो जाए, सोक इन हो जाए कि भी की मीनिंग्स हैगे हैं उत्थे। फिर कहते देखो गुर नंबर 3 जिहड़ा असी पिछे देख आए हैं, धर्म दा आचार्य गुर ईश्वर गुरु गोरख बर्मा, जिहदी असी गल जपजी साहब च कीती सी। फिर कहते तिन को क्या उपदेशी है, उपदेशी है दे सस्से नूं बिहारी है। सिहारी और बिहारी का फर्क गुरबाणी च काफ़ी आया है, जिस तरह सुनिया और सुनिए। सुनिया है, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया सुनन नाल, पहले तुहानू सुनना पेगा, बाद विच रिजल्ट निकलेगा। सुनिया, सुनिए कहिए तो कहता चलो चल के उन्होंने सुनिए, एक्शन पहले होएगा बाद विच सुनना होएगा। पहले चलना पेगा या टीवी ऑन करना पेगा या कोई भी काम करना पेगा, फिर सुनना होएगा। जदों कि सुनिया जे सिहारी लगी है तो सुनिया पहले सुनना पैना, नतीजा बाद च निकलेगा। वेरी माइन्यूट डिफरेंस, पर यदि असी विचार थोड़ा भी अगे होर जाके भी करांगे। वेरी वाइटल दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिहारी और सिहारी का फर्क है ना। महाराज कहते तिन को क्या उपदेशी है, उन्होंने कोई उपदेश दईए जिन गुरु नानक देव, जिन्हां दा गुरु गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने की उपदेश दईए। उन्होंने तो ज्ञान गुरु नानक देव जी की शरणी आउंदियां ही प्राप्त हो गया। इत्थे भाई साहब ने क्वेश्चन मार्क पाया, पर गुरबाणी च किते क्वेश्चन मार्क आंदा नहीं, इस वास्ते मैं रैड इंक विच रखिया इहनूं। श्री गुरु गोबिंद साहिब ने 4 प्रकार, हरगोबिंद साहब ने 6वें पातशाह ने 4 प्रकार के गुरु दसे हैं। ये गुरु बिलास विच भी आंदा है, और भाई साहब ने कान सिंह नाभा जी ने अपना महान कोश भी लिखा है। ये सारी टाइपिंग महान कोश तो है। कहते भृंग गुर, भृंग खास जाति के कीड़े नूं अपने वर्गा कर लैंदा। भृंग हुंदा जिहड़ा वास्प, जिहड़ा फुल्लां दी खुशबू लैंदा, ब्लैक कलर का भृंगी, उहनूं भृंग कहंदे हैं। पर हरेक कीड़े नूं अपने वर्गा नहीं कर सकता, खाली खास जाति के कीड़े नूं भृंगी बना लैंदा। फिर कहंदे पारस गुरु, लोहे नूं सोना कर सकता है। पारस गुरु लोहे नूं सोना कर सकता है, पर पारस रूप किसी नूं नहीं दे सकता।
पारस के गुण की है कि लोहे नूं सोना बना लेगा पर पारस नहीं बनाएगा। दूजा कहते वामन चंदन गुर, वामन का अर्थ होता है छोटा। वामन चंदन गुर खास रुत विच पास दे बिरछां नूं सुगंध वाला कर दिंदा है, पर सारियां रुतां विच नहीं ते बांस नूं किसे रुत विच भी नहीं। ये असीं विचार ऑलरेडी कर लई है, सो इहदे ते ज्यादा टाइम लाउण दी लोड़ नहीं। फिर कहते दीपक गुर अपने तुल ही दूजे दीपक नूं ज्योति वाला कर लैंदा। जेड़े दीपक च नेरा सी, जेड़े दीपक नूं जोत मिली नहीं सी, दीपक गुर उस दीपक नूं ज्योति जला के उस विच प्रकाशमान करके उन्होंने अपने वर्गा कर लैंदा। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस। फिर इत्थे फिर कहते हैं बृहस्पत गुरुवार जिहड़ा असीं गल कीती। फिर कहते उस्ताद विद्या दसण वाला, दो मात्रा वाला अखर। इहनूं थोड़ा ख्याल नाल सुनिया जे। लघु नालों दूना समा जिसदे उच्चारण वास्ते लगे वो गुरु मात्रा है। लास्ट टाइम असी देखिया सी नन्ना कन्ने नाल और नन्ना मुक्ता। उत्थे मैं तुहानूं मात्रा दे भार तोल दा शेयर कीता सी कॉन्सैप्ट तुहाडे नाल, ते ग्राफ भी दिखाया सी भी किस तरह भार तोल बदल जाता है कन्ना लगाण नाल या कन्ना ना लगाण नाल। ते इत्थे भाई साहब कहते हैं जिहड़ी मात्रा नूं दूना भार हुंदा है, मतलब दो, डबल, टू। मुक्ता, औंकड़ और सिहारी इन्हां दा भार एक है, बाकी मात्रा दा भार दो है। उन्होंने भाई साहब जी कहते वो गुरु मात्रा हैगियां, तो उन्होंने दीर्घ मात्रा भी कहा जाता है पर वो गुरु मात्रा भी कहा जाता है। तो वो इत्थे भाई साहब जी ने बहुत सोहनी तरह समझाया है। कन्ना, बिहारी, दुलैंकड़, लां, दुलाइयां, होड़ा, कनौड़ा, बिंदी एक्सैट्रा। सो मैं इहदे विच ज़्यादा डिटेल च नहीं जाता, पर इहदे विच भी खासियत जरूर हैगी है। मात्रा नूं वेटेज असाइन करना भी इन्ना आसान नहीं हैगा जिन्ना मैं सोचिया सी। I learnt little bit more yesterday, ਉਹਦੀ मैं गल बाद च करांगा। पर भाई साहब कहते शत्रु और मित्र ये जिहड़े लफज हैं इन्हां दा शशा अते मम्मा ये गुरु लफज गिने जाणगे। दैट मीनस इन्हां नूं भावें हुण देखो शत्र शशा जिहड़ा हैगा मुक्ता है, नॉर्मली इहदा वेट एक होना चाहिदा सी पर दो है, क्योंकि शत्र जोर आंदा है उहदे उत्ते। जिथे थोड़ा एम्फेसिस वध जाएगा उत्थे वेट वध जाएगा, क्योंकि शत्र नो शत्र प्रोनाउंस करने वास्ते कहते जिथे दूना समा लगे वो गुरु मात्रा है। सो सेम थिंग विद मित्र, अदक की आवाज आ जाती है ना, मित्र शत्र टाइम वध गया। सो दिस इज अनदर थिंग। हुण असीं चलते हैं अगली ते। इत्थे तो हो गया ना साडा। हाँ, कवि संतोख सिंह जी, चैप्टर 1 पेज 93, सूरज प्रताप, गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ जिन्हों असीं सूरज प्रकाश भी कहने हैं। उत्थे भाई साहब जी कहते गुरु इज अ कंबीनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये स्वरणजीत सिंह जी ने भी एक्सप्लेन किया सी अपने स्लाइडां च। गु प्लस रू। गु है डार्कनेस, नेरा। नेरा दो तरह का हुंदा है। वो कहते एक तो नेरा है अज्ञानता का, जिथे बंदे नूं नॉलेज नहीं हैगी। दूसरा नेरा है प्रकाश का उल्ट, लाइट का उल्ट, जिन्हों असीं रात नूं नेरा कहने आ। जदों अखां नूं नज़र नहीं आता उन्होंने नेरा कहते हैं। जदों फिजिकली अखां देख नहीं सकदियां किसी कमरे विच या किते भी, उन्होंने कहते हैं नेरा हो गया। तो भाई साहब जी कहते नेरा दो तरह का है, गो और गु दोनों का मीनिंग एको ही है। फिर कहते रो और रू दोनों एको तरह के शब्द हैं। रू का अर्थ है नेरे नूं खत्म करने वाला, इरेडिकेटर ऑफ द डार्कनेस। मतलब जेड़ा शक्ति या जेड़ी चीज ऐसी ज्ञान प्रदान करे जिहदे तो अज्ञान दूर हो जाए, वो गुरु है।
टीचर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच वगैरह वगैरह नूं असीं गुरु कह सकते हैं। उहदी असीं डिस्कशन थोड़ा 1 मिनट बाद करांगे नैक्सट स्लाइडां च। या असीं कह सकते हैं कि फिजिकल परसन जिहड़ा रिलीजियस नॉलेज देवे वो गुरु है। अजकल तो मोड्स बदल गए, वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। पर पुराने जमानिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु शख्सियत, इंसान, पुरख, परसन, फिजिकल परसन ही हुंदा सी जिहड़ा ज्ञान दिंदा सी। हुण मैं कहना भी भाई साहब जी ने कहे 2 तरह के नेरे हैं। मैं एक होर तरह का नेरा अपने विचार नाल सोचदा, वो है द डार्कनेस ऑफ प्रिटेंशन। जिथे असी प्रिटेंड करते हैं कि मैनू हर चीज़ आती है, मैनू कोई नवी चीज़ सीखण की लोड़ नहीं, मैं की सीखना, मैनू तो सब कुछ पता है। वो असी अपने आप नू वी कॉल आवरसेल्व्स मिस्टर नो ऑल एंड वी क्रिएट अ बाउंड्री, a wall around us, and we do not feel the need of improvement, and we continue to prevail in the self-imposed darkness। अपने आप क्रिएट किया होया नेरा जिहदे विच असी सोचते हैं मैं की सीखना, मैनू सब कुछ आंदा, मैनू की सिखाना किसी ने। So I call that as a darkness of pretension. I don't know whether you all agree or not, but I feel that is also a type of darkness। ते असीं चलदे हां अगली स्लाइड ते। इंग्लिश डिक्शनरी दा मीनिंग ऑफ गुरु की है? A personal religious teacher and a spiritual guide in Hinduism। A teacher and especially intellectual guide in matters of fundamental concern has been a guru to many young writers। फिर कहते one who is an acknowledged leader or a chief proponent became the guru of a moment। A person with knowledge or expertise जिन्हों असी स्पैशलिस्ट कहने हैं उन्होंने भी गुरु कहते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है कि यह वर्ड 1613 विच डिक्शनरी विच आया। गुरु वर्ड हिंदुइज्म च बहुत पुराना है, सेंचुरीज तो युगों तो चल रहा है, पर इंग्लिश डिक्शनरी विच यह लफज आया 1613 विच एंड दे ट्रैक इट वाया अ टाइम ट्रैवलर। तो दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू। हुण असीं देखते हैं गुरु बारे असीं काफ़ी कुछ विचार कर लई। हुण असीं देखते हैं गुरु और चेले का रिलेशन की होना चाहिए। गुरु और चेले की जिहड़ी रिलेशनशिप है, जिस तरह मैं दसिया कि हिंदुइज्म विच स्पैशली जदों सिखिज्म हाले नहीं सी बनिया, सेंचुरीज तो चली आ रही है। गुरु और चेला बड़ा कोरिलेटेड, बड़ा कंबाइंड एसोसिएटेड वर्ड है। ते ओल्डन डेज विच प्रीस्ट या पुजारी या ऋषि महारिषि बन जाते सी और गुरु का रोल अदा करते सी और शिक्षा देंदे सी लोकां नूं और गुरु कहलाते सी। उन्हां दिनां विच चेले तकरीबन कैंपस ते रहिंदे सी जिन्हों आश्रम कहा जाता सी। आश्रम विच रह के ही सालां साल सारी विद्या लैंदे सी। उत्थे उन्हां नूं वर्डली ज्ञान, मैटीरियलिस्टिक ज्ञान, शस्त्र यूज करन दा ज्ञान, वेदां दा ज्ञान, शस्त्रां दा ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी दा ज्ञान, हर चीज़ दा ज्ञान गुरु दिंदे सी। हिस्ट्री कहती है कि महारिषि विश्वकर्मा राम दा और लक्ष्मण दा गुरु सी। फिर भगवत पुराण कहता है कि ऋषि संदीपानी लॉर्ड कृष्णा दा और उहदे भरा बलराम दा गुरु सी। उन्हां दिनां च भी गुरु और चेले की रिलेशनशिप वॉज नॉट ए गिवन। ये नहीं सी हुंदा भी जेड़े चेले ने भी जेड़े गुरु को जाना उस गुरु ने चेले नूं एक्सेप्ट कर लेना तो गुरु बन जाएगा। उहदे विच भी काफ़ी क्राइटेरिया यूज होंदे सी। हरेक गुरु हरेक नूं चेला नहीं सी बनाता और हर चेला हर गुरु का चेला बन नहीं सी सकता।
तो एक साखी मैं जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर करदा भगत पीपा जी दी है। भगत पीपा जी दा जन्म 1426 दा है। उन्हां दे अंतकाल दा कोई डेट है नहीं, मैं काफ़ी जगह चैक किया, अंतकाल दा उन्हां दी डेट मिलती नहीं। किसी ने जन्म 2425 का लिखा, किसी ने 2426 का लिखा, बट नॉट ए बिग डील। भगत पीपा जी राजा सी, एक सियासत के राजा होंदे सी ते उन्हां दियां 17 राणियां सी। सब तो वड्डी दा राणी का नाम सीता सी। भगत पीपा जी का इनकलीनेशन हमेशा साधुआं वाल रहा, बड़े साधुआं की सेवा करते सी, साधुआं नाल बड़ा प्रेम सी। ते एक दिन दिल च आया कि मैं गुरु धारण कर ला, ते वो भगत रामानंद कोल गए। भगत रामानंद का समा है 1366 तो लैके 1467 तक, 101 ईयर्स। भगत रामानंद ने उन्होंने कपड़े देख के उन्होंने वापस भेजता, कहता मैं तेनों चेला नहीं बनाना, क्योंकि वो शाही लिबास गए सी। उन्होंने कपड़े बिल्कुल शाहाना कपड़े से, जिस तरह के कपड़े राजे पाते हैं वही कपड़े पा के भगत जी रामानंद जी को गए तो रामानंद जी ने उन्होंने वापस मोड़ता। भगत जी ने बहुत दुख लग्या, उन्होंने आके पूरा राजपाट डिनाउंस करता, सब त्यागता। जो सब कुछ त्यागया, संन्यास लिया, तो राणी जी उन्होंने सब तो वड्डी राणी सी सीता, उन्हें कहा भी मैं तुहाडे नाल चलांगी, मैं भी राजपाट त्यागांगी। देखो मैं जिहड़ियां तुहानूं साखियां दस रहा, दीज आर नॉट हियर से, मैं तुहानूं मन घड़ंत साखी कोई नहीं दसनी। जिहड़ियां मैं किताबां चों पढ़दा उही तुहाडे नाल मैं शेयर करांगा, और जे किसी नूं किताब दी रेफरेंस चाहिदी है, आई विल बी मोर दैन विलिंग टू शेयर दैट आल्सो विद यू। ते जदों राजपाट सारा उन्होंने त्याग दिता, राजपाट त्याग के फिर वो दोबारा रामानंद जी कोल पहुंचे, तो भगत रामानंद ने कहा जा खूद छाल मार दे। उन्होंने खुद छाल मार दी। उन्होंने गुरु का हुक्म मन्निया। उन्होंने सोचा कि ये मेरे गुरु ने मैनू हुक्म दे दिता है कि तू खुद छाल मार दे, मैं खुद छाल मार देनी है। उन्होंने किंतु नहीं किया। सो वेयर आई एम गोइंग इस के भगत दी और गुरु दी रिलेशनशिप कितनी सी, कितनी भगत अपने आप नू गुरु ते भरोसा करता सी भी गुरु ने मैनू जो कहा मैं वो कर देना। ते रामानंद जी जिस चेलिया ने उन्होंने बचा लिया, ते रामानंद जी इतने खुश होए उन्होंने ओबीडियंस देख के कि मेरा हुक्म इन्हें तत्पर मन लिया, किंतु नहीं की, जाके खुद छाल मारती। उन्होंने पीपा जी ने अपना चेला बना लिया। भगत कबीर जी बारे भी असी सुनिया होया है कि भगत कबीर जी नीवी जात दे जुलाहे सी। उन्होंने भी ज्ञान, गुरु ज्ञान भगत रामानंद जी कोलों लिया। उहदे वास्ते काफ़ी कहानियां उन्हां च मैं नहीं जाना कि उन्होंने भगत रामानंद जी कोलों ज्ञान किस तरीके नाल लिया, पर यह पक्की गल है कि गुरु मंत्र उन्होंने भगत रामानंद जी कोलों मिलिया। भाई दरबारी जी ने हिस्टरी नोट की है, उन्होंने इनू कलमबंद किया। उन्होंने कहा चौपाई च कहा अपने मन में पंडित खिंचे। जदों रामानंद ने भगत कबीर जी ने अपना चेला बना लिया तो पंडितां ने काफ़ी हंगामा किया। कहते अपने मन में पंडित खिंचे, रामानंद सुना तब रिझ, हमको दर्शन ना है दिखावे। बड़ी सिंपल है, एक्सप्लेनेशन की लोड़ नहीं। तुर्क जात को सीख सुनावे, क्योंकि कबीर जी का जन्म किसी को पता नहीं भी मुस्लिम परिवार च पैदा होए सी कि नहीं, पर उन्हां दी पालन पोषण मुस्लिम परिवार च ही होया सी। दैट्स अ गिवन, क्योंकि ना कबीर भी मुस्लिम इंक्लिनेशन वाला ना है, पर कबीर जी का अपना कोई धर्म नहीं सी। कबीर जी ने सिंपली कहा ना हम हिंदू ना मुसलमान। ते कहते पंडित ब्राह्मण बैठे दूर, तुर्का मंत्र मिले हजूर। रामानंद सौ बनी लड़ाई, बूझे यह बिद क्यों बन आई। भाई रामानंद तू ये की कीता, सानू नेड़े लगन नहीं दिंदा ते तुर्क नू तू गुरु मंत्र देता, तुर्क नू चेला बना लिया। फिर कहते दोहरा तुर्क कन मंत्र दिया, करे जुलाहे सीख, हमको दर्शन ना मिले
तुरक नूं देवैं दीख, तुरक नूं तू दीख्या दे दित्ती, सानू नेड़े नहीं लगन दिंदा, सानू कहंदा भी असीं सूटेबल नहीं हैगे तेरे चेले बनन दे। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कबीर साहब दा गुरु रामानंद जी सी। हिस्टरी ये भी कहती है कि उस तो पहले रामानंद जी जात पात का भेद करते सी, पर कबीर साहब नूं दीख्या देण तो बाद उन्होंने जात पात की डिस्क्रिमिनेशन छोड़ती और छोटी नीवी जात का भेदभाव करना छड़ दिता। हुण जदों असी बाणी विच सिख धर्म च गुरु की गल करते हैं तो सानू थोड़ी जी निगुरे की भी गल करनी पेगी। पानी विच निगुरे की बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई है। इंपॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस दिखाया। ये नहीं कि अभी निगुरा बनना अच्छा है, मैं चलदा उहदे विच इन अ मिनट, पर निगुरे का मैंशन बहुत है बाणी च। सो असी थोड़े टाइम वास्ते निगुरे नूं देखदे हां कि निगुरे दा और गुर दा सिग्निफिकेंस दोनों का की है। निगुरे दी महान कोश विच डेफिनेशन दी है, जिसका गुरु नहीं, जो मनमुख है, जिन्हें सतगुरु नानक देव उपर विश्वास नहीं किया, ना करन वाला, वो निगुरा है गुरबाणी के हिसाब नाल। हुण बाणी की कहती है? बाणी कहती है सो निगुरा जो मर मर जमै, निगुरे आवन जावणिया, निगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाम बुरा। निगुरे का नाम ही बुरा है। खाली निगुरा ही बुरा नहीं, जेड़ा बंदे ने जिन्हें गुरु नहीं किया वो ही नहीं बुरा, ओदे नाल संगत करनी ही बुरी है, ओदे नाल डीलिंग करनी भी बुरी है। सो इनू असीं डिटेल च वेखांगे। जिनका हृदय ना है हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरकटी। बेरकटी का मीनिंग होता है विकारी मनुख। मराठी विच बेरकटी का मीनिंग है जिस बंदे कोल ओढ़नी नहीं, जिस बंदे कोल कंबल नहीं, इन अदर वर्ड्स जिस बंदे की इज्जत नहीं। सो ये बेरकटी के अर्थ है महान कोश बताई मिले हैं। दूसरा कहते ज्यों निगुरा बहु बातां जाने, सहज सियाणपा लख होए। ज्यों निगुरा बहु बातां जाने, ओह हर दरगे है भ्रष्टी। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, ओह हर दरगे है भ्रष्टी। भ्रष्टी का अर्थ हुंदा है दुष्ट जां भ्रिष्टिया होया मनुख। सो निगुरे दियां होर भी काफ़ी डेफिनेशंस आंदियां बाणी च, पर मैं 4-5 ही कढ़ियां क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द फ्लेवर ऑफ द वर्ड निगुरा, कि निगुरे दा बाणी विच किस तरह दर्शाया गया है सिग्निफिकेंस। हुण असीं देखदे हां निगुरे का है नाम बुरा। इत्थे जदों असीं देखिए ते सिख हिस्टरी विच जदों असीं निगुरे की गल करिए ते असीं अमरदास जी की गल कीती बिना नहीं रह सकते। अमरदास जी बड़े सोहने परिवार तो सी। मैं इस टाइम लफज गुरु नहीं वरत रहा क्योंकि यह साखी जिहड़ी है वो अमरदास जी के गुरु बनन तो पहला दी है, इस वास्ते गुरु ब्रैकेट च लिखिया है। गुरु अमरदास जी का जन्म है 1479 और उन्हों का स्वर्गवास सिद्धांत का टाइम है 1574। काफ़ी लंबेरी उम्र महाराज ने उन्होंने बख्शी सी। 1441 1541 क्योंकि परिवार तो बड़े सुखी सी, आमदन काफ़ी सी, जीवन चंगा सी, ते उन्होंने जदों 40-45 साल की उम्र हुई, 42 साल की उम्र हुई, उन्होंने सोचा कि भी हुण मैं हर वारी हरिद्वार जावां, तीरथ पुन करा, क्योंकि वो बड़े स्ट्रिक्ट हिंदू सी।
हिंदूइज्म च बड़े फॉलो करते सी, उन्हां दी डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग सी। जिस तरह गुरु अंगद देव जी की डेडिकेशन देवी दे बारे बहुत स्ट्रांग सी, इन्हां दी भी डेडिकेशन टुवर्ड्स हिंदूइज्म बहुत स्ट्रांग सी। एंड दैट वाज वन क्वालिटी ही हैड, डिटरमिनेशन। जिहड़ी चीज़ नूं करना है उहनूं मन ला के करना है। ते जदों वो 21वीं वारी, हुण कित्थे हिस्टरी कहती है भी वो हर 6 महीने जाते सी, कित्थे हिस्टरी कहती है भी वो हर साल जाते सी। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी। हिस्टरी कहती है कि 1548 विच जदों वो 21वीं वारी 21st टाइम हरिद्वार गंगा की यात्रा करने वास्ते गए, ते जिहड़ी धर्मशाला विच वो रुके, वो धर्मशाला दुर्गा ब्राह्मण दी सी। दुर्गा ब्राह्मण ते एक ब्रह्मचारी साधु दा उत्थे उन्हां दा मेल होया। दुर्गा ब्राह्मण ने जदों उन्हां दे हत्थां दियां और पैरां दियां लकीरां देखियां, महाराज जदों आराम फरमा रहे सी तो दुर्गा ब्राह्मण दी नज़र उन्हां दे पैरां दियां लकीरां ते पई, ते फिर उन्हां दे दुर्गा ब्राह्मण ने उन्हां दे हत्थ दियां लकीरां भी देखियां। दुर्गा ब्राह्मण समुद्रिक शास्त्र दा ज्ञानी सी। समुद्रिक शास्त्र is a study of palmistry and foot lines। पैरां दियां रेखावां और हत्थां दियां रेखावां दा ज्ञान समुद्रिक शास्त्र विच दिता होया है। उस ज्ञान दे आधार नाल जदों उन्हें देखिया कि अमरदास जी दे हाथां ते और पैरां विच पद्म रेखा है, वो बड़ा हैरान होया। उन्हें दोबारा भी कन्फर्म किया। फिर जदों अमरदास जी धर्मशाला चों निकलन लगे, उन्होंने दुर्गा ब्राह्मण नूं दखना देनी चाहिए तो उन्हें लैण तो ना कर दी। उन्होंने कहा भी की हो गया, क्यों नहीं लै रहा? वो कहता भी तुहाडे हत्थां दियां और पैरां दियां रेखा दसदियां कि या तो तुसीं चक्रवर्ती राजा होने चाहिए सी, या तुसीं किसी उच्ची अवस्था के मालिक बनोगे। ते जदों तुसीं उस अवस्था च पहुंचोगे उदों मैं आके तुहाडे कोलों दखना लवांगा, याद रखियो जे। ये गल्लां सारियां एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण सुन रहा सी। वो ब्रह्मचारी ब्राह्मण की श्रद्धा अमरदास जी वाल बहुत वध गई, इन्नी वध गई कि उन्होंने अपने खाण पीण की भी सांझ शुरू कर दी। चलते गए और खाना पीना इकट्ठा कर दिता। ते एक दिन ब्रह्मचारी ने अमरदास जी ने पूछा कि भी तुहाडा गुरु कौन है? अमरदास जी ने कहा भी मैं तो इस बारे हाले सोचा नहीं, मैं तो गुरु कीता नहीं। वो ब्राह्मण अग बबूला हो गया, बड़ा क्रोधित हो गया। वो कहता तू निगुर है, तू निगुरे ने मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता, तू मैनू दस्या क्यों नहीं कि तू गुरु नहीं कीता? इन्ना इंपॉर्टेंस सी गुरु करन दी हिंदू धर्म विच। वो ब्राह्मण कहता हुण मैनू सारे तीरथ दोबारा करने पैने आ, तू मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है। ते महाराज अमरदास जी दे दिल विच यह गल बहुत लगी। जदों वापस आए तो बीबी अमरो जी जो गुरु अंगद देव जी की बेटी सी, उन्हां दा विआह अमरदास जी दे भतीजे नाल होया होया सी। अमरो जी सदों सवेरे बाणी पढ़ते सी, शब्द सी करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पए। यह शब्द जदों उन्होंने बीबी अमरो जी कोलों सुनिया तो उन्हों का मन च लग्या है शब्द। वो कहते ये शब्द तो मेरे मन की अवस्था दस रहा है। तो उन्होंने पूछा भी किसकी बाणी है? अमरो जी ने दसिया कि यह बाणी गुरु नानक दी है। वो कहते फिर मैं उन्होंने दर्शन किस तरह करा? तुहानू साखी पता होएगी बट आई विल एक्सप्लेन, आई कंटिन्यू। उन्होंने कहा भी गुरु नानक देव जी तो हुण अकाल चलाना कर गए, पर उन्होंने जगह ते मेरे पिता जी गुरु अंगद देव जी हैं, तुहानू मैं उन्होंने नाल मिला देनी हाँ। कहते हाँ चलो भी उन्होंने दर्शन करिए। तो वो बीबी अमरो जी नाल खडूर साहब आए ते गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने वास्ते जदों पहुंचे, गुरु अंगद देव जी ने कुड़माचारी करके उन्होंने गलवकड़ी च लैना चाहा, पर वो कहते नहीं मैनू तुहाडे चरनां च ही स्थान चाहिए, मैं कुड़म बन के नहीं आया, मैं तुहाडा सेवक बन के आया। उत्थे अमरदास जी ने 1541 तो लैके 1552 तक 11-12 साल गुरु घर की अणथक जिहड़ी सेवा वो सारियां नूं पता है। वो सी घाल कमाई सेवक दी, वो सी रिलेशनशिप सेवक दा गुरु नाल, किंतु नहीं
सिखां दी मुठा चापी, लंगर दी सेवा, गुरु महाराज वास्ते पानी हर रोज ढोना, नेरी होए सर्दी होए गर्मी होए, बस वो गुरु घर दे ही बन के रह गए। वो सी गुरु धारण करना। ओदी भी गल असीं थोड़ी होर अगे चल के करांगे, पर असीं जितनियां स्लाइड्स हुण तक वेखियां उन्हां नूं असीं डिस्कस कर लैंदे हां, समराइज करदे हां कि भी गुरु दा मीनिंग की है। हुण गुरु दो तरह दे, मैं उदों डायसैक्शन करदा, दो तरह की क्लासीफिकेशन दिना। एक तो दुनियावी तौर तरीके वास्ते सानू हर चीज़ सीखण वास्ते टीचर चाहिए, गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए, नहीं तो असीं दुनिया च विचर नहीं सकते। बच्चा पैदा हुंदा है उदों तो ही पेरेंट्स उहदे गुरु बन जाते हैं, रिश्तेदार गुरु बन जाते हैं, नैनी हुंदी है, डे केयर सेंटर आ गए अजकल, बच्चे नूं खाना पीना, पार्टी हैबिट्स, तुरना बैठना, रिड़ना, स्लाइड, हर चीज़, खाना कपड़े पाने, रिकग्निशन, ये तेरी माँ है, ये तेरा प्यो है, यह फलानी चीज़ है, टिमकानी चीज़ है, शब्दों का ज्ञान, अर्थबोध का ज्ञान। जे बच्चे नूं गल ना करोगे तो बच्चा बोल नहीं सकता, जो सुनेगा सीखेगा। सो यह सारिया चीज़ां बच्चे नूं बचपन तो ही सिखानियां शुरू हो जांदियां, और हर इंसान जिहड़ा बच्चे नूं ज्ञान दिंदा है इन वन वे और दी अदर उसका गुरु है। दूसरी, फिर बच्चा वड्डा होकर स्कूल चला जाता है, उत्थे अनेक तरह के टीचर, जियोग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह वगैरह वगैरह, फिजिकल ट्रेनिंग, उत्थे फिर दोस्त भैणा भरा, कॉलीग, कोचिज, ट्यूटर्स, ये सारे उहदियां ज्ञान नूं वधाउंदे हैं। ये सारे गुरु का फंक्शन वन वे और दी अदर सर्व करते हैं। फिर बंदा एम्पलॉय बन जाता है, उत्थे फिर साथी, बॉस, दोस्त। फिर हुण गुरु का नाम थोड़ा एडवांस हो जाता है, काउंसल, कंसलटेंट, ट्रेनर, गाइड, SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये सारियां फिर हाई फाई डेफिनेशंस गुरु की जगह ले लैंदियां, पर है चीज़ उही कि ज्ञान दिता जा रहा है, ज्ञान दिता जा रहा है। हुण असीं देखते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वास्ते सानू की हुक्म है, सिख धर्म विच सानू की हुक्म है कि साडा गुरु कौन है। With all these definitions, with all the details that we have discussed, सानू हुक्म ये है कि भी सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। नन्हे नू बिहारी है, फ्यूचर मानियो ग्रंथ। दसम पातशाह ने 7 अक्टूबर 1708 विच जदों अकाल चलाना कीता, गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहब नूं बख्श दित्ती। ग्रंथ साहब नूं गद्दी दे के गुरु दा टाइटल दे दिता, बई अज तो बाद गुरु ये है। उस चीज़ नूं भाई नंदलाल जी ने अपने रहतनामे विच कलमबंद किया है। वो कहते दूसर रूप ग्रंथ जी जान, मेरा दूसरा रूप ग्रंथ नूं जानो, उनको अंग मेरो कर मान। ग्रंथ नूं मेरा ही अंग समझना, मेरा रूप ग्रंथ जी जान, इसमें भेद नहीं किछ मान। गुरु ग्रंथ विच और मेरे विच जोत ओहा जुगत साए, सह काया फिर पलटिए, नानक दा दशम रूप है। वो कहते मेरे विच और ग्रंथ विच कोई भेद नहीं। सो सानू हुक्म है कि असी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनीए और किसी देहधारी गुरु के पिछे ना लगिए, किसी होर आलतू फालतू चक्रां च ना पईए। सो सानू वो हुक्म है। हुण गुरु ग्रंथ साहब सानू की सिक्ख्या दिंदे हैं? गुरु ग्रंथ साहब सानू कहते हैं भी बहुत कुछ है गुरु बारे, पर मैं 2-3 ही लाइनां लईआं जिहड़ियां जे असीं अमल कर लईए तो सानू होर ज़्यादा लाइनां की लोड़ भी नहीं पेगी, पर असीं उन्हां चीज़ां ते अमल करते ही नहीं। गुरबाणी कहती है भी मन बेचै सतगुर कै पास। असीं मन की गल कीती सी, कान सिंह नाभा ने गुर का अर्थ मन कहा सी, वन ऑफ द मीनिंग्स। बाणी कहती मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के ससे नूं औंकड़ है, तिस दे ससे नूं औंकड़ है, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नहकामी,
तिसको होत प्राप्त स्वामी, सेवा करत होए नहकामी। असी अमरदास जी की एग्जाम्पल वेखी, निष्काम सेवा कीती ते गुरु गद्दी प्राप्त कर लेती। तन मन धन तिन्हां नूं औकड़ है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निए फिर रिजल्ट की है पाई है। जदों असी बाणी नूं ग्रहण कर लईए, परमात्मा दा हुक्म मन लईए, फिर सानू हर वस्तु और परमात्मा प्राप्त हो सकता है। इत्थे क्योंकि तन मन और धन की गल हो रही है, मैं तुहानू एक कहानी शेयर करनी है तुहाडे नाल। इस वास्ते मैं लफ्ज कहानी वरत्या है, साखी नहीं वरत्या, क्योंकि ये गुरबाणी नाल कुछ रिलेशन नहीं रखती, पर राजा जनक नाल रिलेशन रखती है। और जनक दा मैंशन गुरबाणी च आया है, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। जनक राज की तुलना भट्टा ने भी की है अपने सवैया च। अष्टाबख्श नां दा एक ऋषि होया, उन्होंने अष्टाबख्त भी कहते हैं और अष्टावक्र भी कहते हैं। महान कोश विच उसनों अष्टावक्र आख्या गया। अष्टाबख्श इतना कुरूप सी कि उहदे शरीर दे 8 विंग हुंदे सी। अष्ट का मतलब है 8, उहदे शरीर दे 8 विंग हुंदे सी। इस वास्ते कुरूपता करके उहदा नाम अष्टाबख्श पै गया। राजा जनक दे दरबार दे टाइम विच होया है। राजा जनक दे दरबार विच बहुत ऋषि मुनि हुंदे सी, बड़ा प्रेम सी राजा जनक दा ऋषियां मुनियां नाल। हिस्टरी दसदी है, मैं वेख्या ते नहीं, मैनू ज्ञान नहीं, पर मैं पढ़दा हाँ इस चीज करके मैनू पता है। राजा जनक दे एक दिन अनाउंस किया भी जब मैं घोड़े की रकाब विच पैर रखा और घोड़े ते चढ़ा, उतने समय विच जे कोई बंदा मैनू ज्ञान दे दे ते उन्होंने मैं गुरु मान लांगा। सारे बड़े हैरान होए कि ज्ञान देने वास्ते सालां साल लग जाते हैं, ये कहता अद्धे मिनट च ज्ञान दे दो। कहते ये किस तरह हो सकता है। किसी ने हाँ ना की। अष्टाबख्श कहता राजन मैं तेनों ज्ञान देंगा। बड़े हसे दूसरे। एक तो वैसे अष्टाबख्श क्रूप सी, कहते इन्हें सिर कतल करा लेना है, राजे नूं ज्ञान देन लग्या। राजा कहता ठीक है। वो कहता भी तेरे कोल 3 चीज़ां हैं, तन मन ते धन, है ना, तिन्हां चों मैनू एक दे दे, मैं तेनों ज्ञान दे देंगा। राजा कहता ठीक है, मैं कल दसांगा। राजा घर गया, उन्हें सलाह की मंत्रियों नाल ते राणियां नाल। वो कहंदियां जे तू तन दे देगा ते धन दे देगा ते असीं की करांगियां। तन दिता ते उन्हें तेनों नौकर बना के रखना, आन नहीं देगा राज महलों च। धन दे दिता असीं गरीब हो जाना, असीं कर नहीं सकदियां कुछ। तू इस तरह कर, मन उन्होंने दे दे, मन किसी ने वेख्या नहीं। तू कह भी मेरा मन लै लै, तन ते धन ते तेरे कोल रहेगा ना। राजा गया वापस अष्टाबख्श नूं कहंदा भी ठीक है, मैं तेनों मन दे देना। कहंदा राजन सोच लै। कहंदा नहीं असीं विचार कर लईए, मैं तेनों मन दे देना। कहंदा ठीक है, जा कल आ जी। राजा जान लग्या, घोड़े ते पैर रखिया, रकाब च पैर पाया। कहंदा रुक जा, की कर रहे हैं। कहंदा मेरा मन कहंदा घोड़े ते चढ़ के घर जा। कहंदा मन ते तू मैनू दे दिता, मन तेरा कित्थों रह गया। राजे नूं ज्ञान हो गया कि कहानी सारी मन दी है, तन दी और धन दी कहानी नहीं। महाराज कहंदे मन जीता जग जीत, मन बेचा सतगुर कै पास। कहानी सारी मन दी है। असी मत्था टेक दिन्ने पैसिਆਂ नाल, पर कदे मन करके मत्था टेकिया। मन करके कदे गुरु महाराज नूं 10 पातशाहियां दी जगदी जोत वेख्या। मन ते फोन विच रहिंदा, किते फोन ना खड़क जाए, किते मेरी कॉल ना मिस हो जाए। दूसरे पातशाह कहंदे, दूसरे पातशाह ने गुरु नानक देव जी नाल जिहड़ी लगन लगाई, भाई लैणा जी ने, उन्होंने गुरु बनन तो बाद उन्होंने कलम बंद किया। कहंदे एह कनेही आशकी दूजे लगे जाए। कहंदे तू कहना प्रेम कर रहे हैं,
परमात्मा नाल, पर मन ते तेरा किते होर है। हुण जे फिजिकल लाइफ विच बंदा किसी नूं कहंदा भी मैं ते तेरे नाल ही प्रेम करदा, पर वो देख लैंदा कि ये ते दूजे पासे लग्या होया, गल बनदी नहीं ना, बिगड़ जाती है इमीजिएटली। पर असीं सोचते हैं कि असीं गुरु महाराज नूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेक दिता और साडा प्रेम गुरु जी नाल बन गया। वन साइडेड रिलेशनशिप असीं मेनटेन कर रहे हैं। महाराज कहते नानक आशक कांढी है, वो आशक रिकग्नाइज होंदे हैं जो सद ही रहें समाए। फिर कहते सलाम जवाब दोवें करें, मुंडों को थजाए, नानक दोवें कूड़ियां खाए ना काई पाए। कहते इन्हां गल्लां च कुछ फायदा नहीं, जे आशकी करनी है ते मन दी करो, तन ते धन दी आशकी नाल फायदा कुछ नहीं। सो अज असीं इत्थे ही खत्म करते हैं, क्योंकि मैनूं लगदा टाइम काफ़ी हो गया, मैं टाइम का ख्याल बिल्कुल नहीं किया, माफ़ करियो जे। अगली बारी असीं विचार करांगे ते वी विल लुक एट गुरु और सेवक दी रिलेशनशिप की है, थोड़ा असीं होर ओदी डिटेल में जावांगे। फिर गुरु ते सतगुर इहदी डिटेल में जावांगे ते थोड़ी जी फिर मैं नाप तोल की भी गल करांगा, लगा मात्रा दी। ते एक एक्सरसाइज चरणजीत सिंह जी ने मैनू करन वास्ते कहा सी भी तुसीं दस दिओ नाउन किहड़ा, वर्ब किहड़ा, ये सब किहड़े हैं। ते मैं दो तुक्कां च वो भी आइडेंटिफाई कीता, ओदी भी कंसीडरेशन नेक्स्ट टाइम कर लांगे। सो आई कंक्लूड हियर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनेहा सत श्री अकाल।